Hello everyone. Today with the chapter which we have started the last week, we are going to start with the same chapter, and I am not receiving your problem. It means that you are not watching the videos at all, because if you see the videos, then only you are having the problem. But I think you are not watching the videos, and that's why you don't have any problem. So I am starting with a new chapter. If you have not seen the videos, to start it from today, because this is very important chapter and you will get 10 marks or 15 marks question from this unit only. कम से कम 10 या 15 marks का question बेटा 101% you will surely get it from here. So it is very important. So just pay attention and just start watching the videos. Okay, so we are starting with the same chapter which I have started, that is the current electricity. And when we talk about the current electricity, so some special terms I have already explained it to you. The term current मैंने आपको बताया था कि what is current equals to क्या होता है, Q upon T, that means rate flow of charge. You can call it a current. जब charge flow करता है तो क्या बोलते हो आप उसको, current बोलते हो. We have also discussed about the resistance. We have also discussed about the resistance. Resistance क्या है? Resistance is the obstacles offered by the positive charge and due to the collision of the electron when they are moving in the conductor. And we have also discussed about the potential difference के बारे में भी discuss किया था. तो potential difference को V से denote हम लोग करते हैं. V equals to W upon Q है. Okay, इसका unit क्या है? एम्पियर. एंड एम्पियर को कैसे तुम डिफाइन करते हो? व्हाट इज एम्पियर? इसका यूनिट क्या होगा? Q का यूनिट होगा कूलम, और इसका यूनिट क्या होगा? टाइम. कूलम और टाइम के रेशियो को ही आप क्या बोलते हो? एम्पियर बोलते हो. एंड दिस इज वोल्ट. वोल्ट मीन्स जूल, और अपॉन कूलम के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 वोल्ट बोलते हैं. वोल्ट मीन्स के वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द volt is the SI unit I am talking about. V is here, he denote the potential difference. So I think these things are clear to you. We have also discussed about the resistance in parallel, resistance in series. So all these things we have discussed. Now I am taking some numericals and I have to discuss about the Ohm's law. Now what did Ohm's law says you? Ohm's law says you that when the physical conditions are kept constant, जब आप physical conditions को constant रखोगे, physical condition constant means के you have to kept temperature and pressure constant. temperature को और pressure को क्या करना है? constant रखना है. in that case V is directly proportional to current. V is directly proportional to current. it means के दोनों में से किसी को भी मैं इंक्रीज करूंगा, अकॉर्डिंगली दूसरे वाला जो है अपने आप इंक्रीज कर जाएगा. इट मींस कि अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट इन कांस्टेंट. और जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, इट इज आर हेयर. एंड आर मीन्स के द रेजिस्टेंस. तो इट मीन्स के आर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी. ओके, वी आर ऑल्सो हैविंग एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दिस, that I cannot do it here in the I cannot do it here. So that experiment we will do in the lab only. So when the schools reopens, I tell you how to verify this law कि कैसे ये रेशियो क्या होती है? कांस्टेंट आती है. So till then remember it कि V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के. मीन्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, वी हैव टू पुट इन कांस्टेंट हियर. कांस्टेंट जो यूज कर रहे हैं हम लोग क्या है? R है. सो V इक्वल्स टू क्या हो गया? I. R we can say. So R equals to V upon I. So this is your Ohm's law. Now after this कुछ तो ऐसे कंडक्टर्स हैं which you call the ohmic conductors. Now what are the ohmic conductors? So ohmic conductors are those conductors which follows the Ohm's law. जो Ohm's law को फॉलो करेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा आपके? वो हो जाएंगे ohmic कंडक्टर. कुछ कंडक्टर्स आपके ऐसे हैं जो Ohm's law को फॉलो नहीं करेंगे, and those conductors are called non ohmic conductors.
क्लियर। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। सो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? नंबर 1, इसका ग्राफ हमेशा इनिशियल पॉइंट से जाएगा। अगर ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर अगर है, तो इन दैट केस द ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन। जब आप v को टेकन ऑन द y एक्सिस और इसको I को मैंने किस पे लिया है, x एक्सिस पे। You can also change, you can take v here and I here, but the graph will be the straight line slanting on the x axis and it always passes from the initial point। 0 0 से हमेशा पास करेगी। अगर 0 0 से पास नहीं करे मीन्स के द ग्राफ इफ सपोज लाइक दिस, या ग्राफ सपोज say like this, तो these types of graphs are not for the ohmic conductor। अगर ohmic conductor है तो the graph should be just like this। नॉन ओमिक के लिए कोई सा भी, ये भी नॉन ओमिक है, ये भी नॉन ओमिक है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएशंस आ रहा है। वेरिएशंस किस में आ रहा है? वेरिएशंस आ रहा है किसमें? v और i में। ओके, यहाँ पर तो इस वाली वैल्यू से आपका v स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर सपोज मैं v को रख दूं और यहाँ पे i रख दूं तो मीन्स के v 30 वोल्ट है और करंट 0 है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर यहाँ पे मैं v रख दूं, यहाँ पे i रख दूं, तो ये क्या है, यहाँ पर सपोज ये 40 वोल्ट है और ये कितना है, से 10 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो दोनों के दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, दोनों एक साथ इंक्रीज करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो these are for the non-ohmic conductor and this is the graph for the ohmic conductor। okay, ohms law में अभी 10th क्लास में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। so I am having two numericals which I feel they are important for you, so let us do these two numericals। so let us do these two numericals। so the first numerical says you that इसमें सर्किट आई ऑलरेडी ड्रॉन इट फॉर यू। ये क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I एट दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये V फाइंड आउट करना है। तो दीज थ्री थिंग्स आई हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, I फाइंड आउट करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, these are in सीरीज, और सीरीज में करंट क्या होता है, करंट विल बी सेम, मींस चार्ज सेम है, चार्ज सेम मींस करंट विल बी सेम। तो सबसे पहले करंट निकाल देते हैं। करंट के लिए मुझे फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। ओके, V इक्वल्स टू IR है, तो V I फाइंड आउट करना है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। सो V की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ V इज 10 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ R इज हाउ मच, इट इज 5। सो इसको काटा, द करंट इज 2 ampere। so first part done। in the second part he is asking me the value of R। so I की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो R निकालना है, तो नो प्रॉब्लम टू मी। सो R निकाल दो, R क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इज 6 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज 2 वोल्ट। काटा इसको, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 ohms। then he is asking me what is the value of this V। so for calculating the value of this V, so दिस V इतनी वोल्टेज जा रही है और ये वोल्टेज दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करके हो रही है, यहाँ पर V1 मिल रहा है, यहाँ पर V2 मिल रहा है। ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो दैट मीन्स V कितना हो जाएगा, V विल बी प्लस 6 मीन्स के 16 वोल्ट इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। देन द लास्ट पार्ट, ये सब R we have calculated, I we have calculated and V we have calculated। after this one more numerical we are having। in this what we have to do, we have to find the equivalent resistance। अब equivalent resistance बेटा कैसे निकलेगा, in this सारे के सारे कितने दिए, 1 ohms दिए हैं। so we have to start from here। यहां से मुझे स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, एंड कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, मींस के 1/1 वी गेट 2 हियर, 2 मिलेगा, 1/1 करूंगा, 2 मिलेगा। सो 2 इज देन एडेड विद दिस इन सीरीज। ओके, सीरीज में ऐड हो जाएगा, देन दे आर इन पैरेलल। सो ट्राई दिस, ये ट्राई करना है तुमने, इसको ट्राई करना। आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें दूंगा। जस्ट ट्राई टुडे एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, बट प्लीज वॉच द वीडियोज। अगर नहीं देखोगे तो यू आर इन ट्रबल देन। ओके, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।